Namaskar, a very good afternoon to all of you. Thank you once again for joining our weekly presser. Nice to see the hall now, a regular format and with COVID restrictions. I don't have any particular announcement to make, so I can see hands going up. Hold on. And we have already issued some of, as you know, the External Affairs Ministers abroad. We issued a press release on that, and we shared some more details. Foreign Secretary is also abroad. We may have some more events, etc., which we will announce as the time goes by. So with that, let me open up the floor for questions. Okay, I see these two people first. Okay, maybe start off. Okay. Sir, Pranay from ABP News. There are reports that तालिबान की गवर्नमेंट जल्दी ही काबुल में फॉर्म होने वाली है, तो क्या इंडिया को किसी तरीके का इनविटेशन मिला है और क्या उसमें अगर इनविटेशन मिलता है तो कोई पार्टिसिपेशन इंडिया की तरफ से होगा? थैंक यू. सर, शैलेंद्र फ्रॉम नेटवर्क 18. ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो कुछ इंडियंस वहाँ फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए दोबारा ऑपरेशन चलाया जा सकता है. क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं? और कोई क्वेश्चंस? सर एक और प्लीज. Sir, we know that the meeting has happened. There has been official announcement by the MEA between Taliban and the Indian envoy. Are we expecting more such meetings in the future? Okay, और कौन थे इसमें? Let's take it one side and not. Maybe we'll take it this side. पहले आते हैं. We'll have another round. I'll just go through. Sir, Taliban-led government may be formed soon. Does the government of India have any inkling or any information about whether it will be a representative government which involves people from non-Taliban organizations, or will it be entirely Taliban? Maybe one more before I go through the round. Somebody raise his hand, then I'll come back to you. Yeah, please. Hi sir, I'm Ashok from ANI. क्या जो अफ़गानी इंडिया में हैं उनको वापस भेजने की किसी तरीके की कुछ कोशिश हो रही है, जो लोग जाना चाहते हैं? सॉरी, फिर से बताएंगे? यहाँ से अफगानिस्तान भेजने के लिए? यस, कोई जो जाना चाहते हैं. जी बताइए. जो अफ़गानी यहाँ ऑलरेडी हैं और जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया है, उनके लिए क्या भारत सरकार कोई व्यवस्था कर रही है उनके वीज़ा बढ़ाने की है क्या? जी. ओके, हाँ, इसी पे है सेम इशू, और आई विल कम बैक टू अनदर राउंड ऑफ क्वेश्चन. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट. हाँ, pause. Let me just get back to this. Let me start with the evacuation question. I think you asked on that one. Look, as you know, we have been prioritizing the evacuation of our of our people there, as well as some Afghans who we could bring out. Currently, of course, the Kabul airport is not operational, so I don't have any an update on when we will be able to do more flights. I think we will be able to revisit this issue once we have Kabul airport operational. Once the airport operations resume there, so I think we'll have to wait for that. Meanwhile, of course, our special Afghanistan cell continues to operate, as in touch with whoever is in Kabul and in Afghanistan. So that's what I would say about the evacuation part. Taliban government formation invite, I think एक सवाल था, तालिबान सरकार बन रही है, उसके invite. दूसरा, I think there's a question about is it a representative government? I have actually no update on either issue. We're not aware of the invite. I've seen media reports on the government formation, but we don't have any update on anything on the invitation. And I don't have any details I can share with you regarding the nature of what government could form in Afghanistan. Afghanistan people who have returned from Afghanistan, no, I mean, we were focusing, of course, to bring people out of Afghanistan. I haven't heard anything about people. In any case, the flight mechanisms don't work. I mean, I presume you mean people who want to return to Afghanistan, or are you talking about deportation? कि जो वापस जाना चाहते हैं. अब अभी के स्थिति में तो कोई ऐसी फ्लाइट भी नहीं चल रही हैं, तो हमारे पास कोई ऐसे अपडेट नहीं है. कुछ जनरली जाना चाहते हैं, बट वो अलग चीज़ है.
नहीं, जो क्या करें जब तक काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन ना हो, अभी इस पे तो आई थिंक कोई अपडेट नहीं हो पाएगी। और वीज़ा के बारे में आपने पूछा, देखिए इस पे ये ऐसा एक मुद्दा है जिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी के लिए तो जो ई वीज़ा सिस्टम है उसमें 6 महीने वीज़े दिए जा रहे हैं, और जो यहाँ पे हैं कोविड के होते हुए कुछ लोगों के वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गए थे, पर स्पेसिफिक इश्यूज़ पे अभी डिस्कशंस हैं, इंटरनल डिस्कशंस चल रही हैं। जैसे उन्होंने कभी तो मतलब फ्लाइट वगैरह नहीं हो रही हैं। और एक था हमारे दोहा मीटिंग के बारे में, if there एनी अदर प्लान, look, all I know can tell you is there was a meeting, and that meeting we have shared with you details of what the meeting is. I have no update on any further. I would not like to speculate about the future. Okay, let me have another round of questions. Let me start with here, and you. One second. We'll start with gentleman there. Sorry, I know most of you, but I don't want to call you out by name. Better you introduce yourselves. Hi, Sachin from Times of India. Given that Taliban itself, according to MEA, had asked for a meeting on Tuesday with the Indian ambassador, does it not strike as odd that until now there's not even a word from the Taliban on the meeting? There's no confirmation, no announcement, even though they have confirmed meeting with several other ambassadors in the last 2 days. And is it also true that the Taliban didn't want a photo of the meeting? Did they insist on not releasing or even taking a photo of the pic? Thanks. Please here. यहाँ पे फर्स्ट रो यहाँ पे। उमाशंकर एनडीटीवी से। दोहा में तालिबान के नेता के अनुरोध पे हमारे एम्बेसडर ने वहाँ पे मुलाकात की उनसे, एक औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई है। मेरा सवाल ये है कि क्या भारत के पास कोई रोड मैप है कि आगे किस तरह से बात करनी है, या जब जब तालिबान अप्रोच करेगा तब ही हम बात करेंगे? हमारे पास अपना कोई रोड मैप है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या हक्कानी नेटवर्क के जो नेता हैं उनकी तरफ से कल एक बयान आया है कि वो भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो क्या हक्कानी नेटवर्क पे भी उतना ही भरोसा? जुड़ा कैसे रहा सवाल, बट मैं ट्राई करूँ। हाँ, बातचीत से जुड़ा हुआ सवाल। अच्छा ठीक है। और कौन थे इस साइड से? मैं संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 से। भारत में इस मुलाकात के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हम तालिबान को आतंकी संगठन मानते हैं या नहीं मानते हैं, और ये जो मुलाकात हुई थी क्या ये मुलाकातों की श्रृंखला की एक कड़ी है या फिर ये पहली मुलाकात है? Okay, who had a related question, please? Hi, Smita Sharma. Just to follow up on the question, because for India, for the longest, there have been red lines that there is no distinction between good and bad terror, and the Taliban has been a terror group. So where does India's official stand vis-a-vis the Taliban actually stand today? Does engaging also essentially mean that we are a step closer towards recognizing them? Could you repeat? I thought there were two different questions. Did you say about terror or recognition? They're two different issues, right? Two different. So official you're asking stand two on questions. Taliban as a terror group, and May I request everybody engaging to stick with to them, one question? The law. Anyway, is it but a I'll try step to closer answer. to recognizing Okay, them? fair enough. I'll try to answer that. Okay. Maybe this side. You. कादम्बिनी शर्मा फ्रॉम एनडीटीवी इंडिया। जो सवाल यहाँ पर पूछा गया उसी से जुड़ा हुआ है। ये जो मुलाकात हुई है दोहा में भारत और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, तो सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि हम इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, या कोई टाइम पीरियड दिया गया है दैट विल गेट बैक टू यू अबाउट जो भी इंडियंस वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं? Let me try to answer a few of this, and I'll try to see some of the questions have already been answered, but let me just try. पूछा गया था कि अफगान ये कोई श्रृंखला है, is there more meetings? I just answered. I have no update to share on that. I don't want to speculate. Photo was not put. I mean, no. Is it not odd they haven't said? That's up to them. No photo. I think it just didn't happen. It's just a meeting. It wasn't really that kind of an event where photos are taken, I presume. I mean, there's nothing. I don't think there's any thought behind it. We don't have a photo of it. I think neither side took a photo. Regarding अभी की कोई रोड मैप है, औपचारिक मीटिंग और रोड मैप अभी पूछा था आपने उसमें। देखिए, येस और नो सवाल नहीं है ये। हमारे पास बिल्कुल, हम ऐसे बिना सोचे तो कुछ किया नहीं होगा हमने। नहीं, मैं लंबा जवाब येस और नो भी नहीं देना चाहता हूँ मैं। आपने दूसरा पूछा टेररिज्म के बारे में।
उसमें काफ़ी बाकी सवाल भी आए हैं। देखिए, लेट मी जस्ट से हमारा जो मेन कंसर्न है, वन ऑफ द प्राइमरी इमीडिएट कंसर्न इज that Afghan soil should not be used for terrorist, anti-Indian activities or terrorism against India. I think you saw that in our press release. हमने इस बारे में काफ़ी कह रखा है। ये हमारा एक मेन मुद्दा है, और इस पे ही मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा फोकस यही है। तो मैं इस स्पेसिफिक इश्यूज़ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारी रोड मैप के बारे में देखते हैं कैसे आगे क्या बढ़ता है। इसमें इसी बात में आई थिंक सम पीपल आस्क्ड अबाउट इज इट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, what is that's not the focus. The focus, let me reiterate, is that Afghan soil should not be used for terrorist activities of any kind, of anti-Indian activities, and we will try to focus on that element. There was a question about recognition or something like that. Let's just treat the Doha meeting for what it is. It is just a meeting, and I think these are still very early days, and I don't have further on that. And is there a time frame for assurance? Look, we use that opportunity to convey our concerns, whether it is on getting people out or on the issue of terror and anti-Indian activities. We received a positive response. Of course, as I mentioned earlier in some of the questions, a lot of this evacuation or repatriation of people or movement of people will depend on how we open the airport. Kabul airport जब तक नहीं खुलेगा तब तक commercial flights की दिक्कत है, और ये निकलने की बात पे अभी क्लैरिटी नहीं रहेगी। किसी का मैं मिस कर गया? नहीं, आई थिंक दैट कवर्स द लिस्ट। यस, नेक्स्ट राउंड आई थिंक विल क्लोज दिस विद अफगानिस्तान ऑन दिस, द लास्ट राउंड ऑफ यू आई थिंक सिमिलर क्वेश्चंस विल कम अप। ओके, आप मैं ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल पाकिस्तान को लेकर है। अभी बीते दिनों फिर से ऐसी तस्वीरें आई, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वहाँ पर काम करेंगे। अफगानिस्तान पे कोई 2-3 है, मैं आपके पास आता हूँ। हाँ। 2 सेकंड आप यहाँ कुछ अफगानिस्तान पे क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और सर, विजयलक्ष्मी हूँ मैं, इंडिया टीवी से। थोड़ा लेट थी, अगर रेपिटेशन हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। क्या हमारे पास नंबर्स हैं कितने भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं, और उसको लेकर के भारत सरकार एफर्ट्स कर रही है, क्योंकि एयरपोर्ट वहाँ पर तमाम ऑपरेशंस बंद हैं। और इसके अलावा अफ़गान माइनॉरिटीज़ को लेकर के जो हमने बात की थी तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से, तो कहा था कि माइनॉरिटीज़ वहाँ से आना चाहती हैं। तो कोई डेटा फिगर है कि किस तरह के वहाँ से हमारे पास लोग अप्रोच कर रहे हैं, कितने अभी तक हुआ है? Maha Siddiqui from CNN News 18. Sir, the statement released by India on the meeting in Doha, in the first paragraph it says the meeting was on the request of the Taliban side, but the subsequent 2 paragraphs mention what India said. Why did the Taliban seek a meeting? It doesn't mention that. Why were they seeking a meeting? And please, we have 2 people there. Oh, you also? Okay. I think that's the last we'll take. Okay. हेलो, Yes, please. सर नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। एक हमारा सवाल है कि कितने लोग अभी फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, और एक कानपुर की लड़की हीना खान, उन्होंने शायद विदेश मंत्रालय से संपर्क किया, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, ऐसी कोई जानकारी आप तक है? Vedika Sood, CNN. Just want to know how many Afghan nationals have applied for a visa, approximately. Any figure that you have for us? Thank you. जब इस तरह के हालात किसी कंट्री में होते हैं तो जान और माल की सुरक्षा की ज़्यादा चिंता होती है। जान तो आप मतलब बचा के ले आ रहे हैं, इवैक्यूएशन कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ उनका बिजनेस है, दुकानें हैं या और उनके आउटलेट्स हैं, क्या उसकी सुरक्षा का भी कोई आश्वासन इस दोहा मीटिंग में मिला है? ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन है क्या एक स्पेशल है? ये तो सुनने के बाद पता चलेगा, बताइए। Sir, I am Akhilesh Suman from Sansad TV. Do we have a clear-cut refugee policy about Afghans? Those who are coming from there on the e-visa, will they have refugee status or something else? Okay. And okay, we haven't taken. सर नमस्कार, मैं प्रदीप टोटल न्यूज़ से। ये प्रदर्शन देखने को मिले हैं जो अफगान नागरिक जो यहाँ पर भारत में हैं, ऐसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं UNHRC पर, और वो इमिग्रेशन की मांग कर रहे हैं, ऐसे सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं, वो लेटर उनको जारी किया जाए। इसके अलावा रिफ्यूजी स्टेटस कार्ड की मांग कर रहे हैं। तो काफ़ी प्रदर्शन किया है ऐसे लोगों ने। क्या इस पर नज़र है भारत सरकार की, और क्या उनकी मदद करने की कोई प्लानिंग है?
Okay, let me try to answer some of these. काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए हैं. देखिए पहले है हाउ मेनी पीपल आर लेफ्ट इन अफगानिस्तान, कितने रह चुके हैं. देखिए डिफिकल्ट टू शेयर अ स्पेसिफिक नंबर, मैंने पिछले हफ्ते भी यही कहा था, पर्टिकुलरली गिवन द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर. जैसे मैंने पहले कहा था, वी थिंक द वास्ट मेजॉरिटी इंडियंस जो निकलना चाहते थे निकल गए हैं वहाँ से. एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी है नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता रहता है. कुछ लोग आना चाहते थे, कुछ अब हो सकता है और निकल गए हों. हमारी जो अफगानिस्तान स्पेशल सेल है उनसे कांटेक्ट में है, पर लेट मी एम्फसाइज वास्ट मेजॉरिटी निकल गए हैं. बहुत कम लोग बाकी होंगे इंडियंस हैं, कुछ पक्का, क्योंकि हम वी आर इन टच विद देम. एंड जैसे मैंने कहा, निकालने की बात पूछे तो क्या कर सकते हैं जब तक हमारे काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन ना हो, हमें अभी और वेट करना पड़ेगा जब तक काबुल ऑपरेशन हो जाए, फिर हम देखते हैं किस तरह से वो निकल आ पाते हैं. जैसे मैंने कहा था, दोहा मीटिंग में हमने इस बात पे हमारी जो कंसर्न है ये हमने उसको कन्वे तो कर दिया है. सो डेटा वाले, अच्छा हाँ. और दूसरा ये हिना खान वाला केस पे मैं नहीं जानता हूँ, मुझे अवगत नहीं हूँ कि इसमें कोई लिखा है या कांटेक्ट किया है. ये क्या अफगानिस्तान पे है, पता नहीं, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन. अफगान सॉरी नहीं, वीज़ा की बात कर रहा हूँ. वीज़ा के बारे में देखिए, वीज़ा के डिटेल्स आपको मतलब ई वीज़ा वाला सिस्टम करीब 16 तारीख के शाम से ओपन हुआ था, पर इसका जो डेटाबेस है वो हमारे गृह मंत्रालय के पास है, MHA के पास है, तो मेरे पास इस पर डेटा नहीं होगा, उचित नहीं होगा कि मैं कुछ इसमें कहूँ. I think I got a call, how many Afghan visas, was the same question. Same, we don't have an exact number, at least with the ministry. This is the database that's, the application goes directly into the Ministry of Home Affairs. I know we've received some, a large number of them, I'm sure, and we've issued some. We had a query regarding, refugee policy e-visa. देखिए अगेन रिफ्यूजी पॉलिसी वगैरह ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है. ये वीज़ा 6 महीने के लिए ई वीज़ा इशू किया जा रहा है. उसके बाद देखते हैं कैसे होता है. उनका स्टेटस क्या होगा ये आपको होम मिनिस्ट्री पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम तो वीज़ा देते हैं उसमें. आई डोंट नो उसमें रिफ्यूजी स्टेटस होता है या नहीं होता है. सॉरी, आपने नहीं पूछा था, आई थिंक आपने पूछा था, राइट. आपने पूछा था कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं. देखिए हमसे तो डिमांड नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन हमारे खिलाफ तो नहीं है, तो इसमें पता नहीं हम क्या मदद कर सकते हैं. वो कर रहे हैं प्रदर्शन, उनको आई थिंक उनको रिफ्यूजी स्टेटस चाहिए बाकी कंट्रीज़ में. अब बाकी ये तो हमारे टॉपिक नहीं है, हम क्या कह सकते हैं इसमें. एक क्वेश्चन था आपका, क्या था क्वेश्चन? हाँ, जान माल की आप सुरक्षा की बात कर रहे थे. देखिए अब वो दोहा मीटिंग में जो हुआ हमें आपको बता दिया, इसमें उससे ज़्यादा मेरे पास है नहीं कुछ शेयर करने के लिए. हम चाहेंगे ऑफ कोर्स कि अफ़गानिस्तान में उनकी शांति रहे, पीस आए, वहाँ पे जान और माल का सुरक्षित रहे, ये तो हम हमेशा से चाहते हैं. पर वो दूसरे देश में है और वहाँ पे अभी काफ़ी बदलाव चल रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा. वाई अ मीटिंग वॉज आस्क्ड, वाई आस्क अस, I would refer you to the other interlocutor in this. I presume they would like to reach out to all countries who have an interest and are relevant in this, I presume. But I'm speculating and guessing, and which I do not wish to do. What we had to say about the meeting, I think has been amply clear in our press release that we have put out. And as I mentioned, I don't have any further. Somebody asked about further meetings. I think I don't have. That was it. No, have I missed any other thing? Okay. Moving on from Afghanistan, आपने पाकिस्तान पे पूछा था, प्लीज. मेरा सवाल ये था कि अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी तस्वीरें आई, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ी गई, अल्पसंख्यकों को टॉर्चर किया गया. इसको लेकर भारत का क्या रुख है, क्या विरोध जताया है? दूसरा पाकिस्तान से ही जुड़ा सवाल ये है, पाकिस्तान से ही जुड़ा, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभी सैयद अली शाह गिलानी के निधन पर जो मैसेज किया है, ट्वीट किया है, उनको पाकिस्तानी बताते हुए कहा है कि देश में शोक रहेगा, एक दिन झंडा झुका रहेगा. इस बयान को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान को भारत सरकार किस तरह से लेती? देखिए आपने दो बड़े डिफरेंट क्वेश्चन पूछे. चलिए देखिए, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हालात में उन पे अटैक्स पे हमने काफ़ी स्टेटमेंट्स कर रखा है. मैं आज स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ. हमने काफ़ी बार ये इशू रेज़ किया है उनके साथ, आपको भी बताया है हमारे इस माध्यम से, इसी प्रेसर के माध्यम से या अदरवाइज़ हमारे स्टेटमेंट भी आए हैं.
हमारा पोजीशन इस पर काफ़ी क्लियर है, आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट दैट। और इमरान खान ने जताया है उसमें मेरा इमीडिएट कमेंट नहीं है, आई सपोज उनका स्टेटमेंट है, आई डोंट हैव एन इमीडिएट कमेंट ऑन दिस। उन्होंने उनको निशान पाकिस्तान या कुछ भी दे रखा था, उनकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। सॉरी प्लीज़। नमस्कार, मैं राजेश मिश्रा कांतिपुर पब्लिकेशन काठमांडू से यहाँ दिल्ली से काम करता हूँ। नेपाल के संदर्भ में एक प्रश्न है मेरा। 30 जुलाई को नेपाल भारत बॉर्डर दार्चुला 30 जुलाई को पिछले 30 जुलाई को नेपाल भारत बॉर्डर दार्चुला में महाकाली नदी पार करते हुए एक नेपाली युवक उसमें गिर गए और वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि उस ट्विन से पार कर रहे थे तो ट्विन को एसएसबी के एसएसबी के किसी जवान ने काट दिया और गिर गए और लापता है। और इसको लेकर के नेपाल सरकार में और वहाँ जो कुछ विरोध चल रहे हैं तो नेपाल सरकार ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कल रिपोर्ट बुझाया है जिसमें उन्होंने भी एसएसबी के ऊपर आशंकाएँ जताई है और भारत सरकार से उनका आग्रह है कि इस घटना का अनुसंधान करें और अनुसंधान के बाद दोषी को कार्रवाई करे और पीड़ित को क्षतिपूर्ति दे। तो इस बारे में कुछ यहाँ का आपका प्रश्न क्या है, मैं समझा नहीं। वो जो घटना हुआ महाकाली नदी में, जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे महाकाली नदी का ट्विन के सहारे, तो उसको एसएसबी के एक जवान ने उसको ट्विन को काट दिया। तो आरोप है ना? हाँ आरोप है, मैं वही आरोप ही बता रहा हूँ। तो वो एक आरोप है, तो इसके मामले में भारत सरकार क्या कुछ छानबीन किया है इस पर, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी देखिए, इसमें मैंने मीडिया रिपोर्ट्स देखे हैं, हमने भी इसी तरह के रिपोर्ट्स देखे हैं, पर हमारे पास ऐसा कोई खबर नहीं आया है, कोई ऐसा डिटेल तो मेरे पास है नहीं कि ऑफिशियल कुछ आया हो या फिर हमारे पास है। आपने काफ़ी कुछ कहा, उनका कोई इंटरनल रिपोर्ट या कोई छानबीन हुई है, पर मैं इसके बारे में नहीं है, मेरे पास कुछ खबर नहीं है। सॉरी, यस, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सॉरी, नो, ओके, अपॉलजीज। Rekha Dixit from the Week magazine. I'm going back to Afghanistan. Oh no, we just did a 20 odd. No, okay, only if your question is something very different. Okay, anyway. Yeah, it's different because everyone, I mean, you've conveyed what our issues were with the Taliban, but since the meeting was called at their request, what have they conveyed or what was the communication from that side? That for which I know you'll say ask them, but no, I won't say that. I'm just curious at that. No, I did like to say. I mean, what did they say? Have they asked for anything? I mean, for which we had to respond? Look, I think on that meeting, I think we've issued a press release. We have conveyed what we felt were the contours of the conversation. I don't have anything further to share for the moment. Yeah, please. I hope so. Afghanistan's done. सर, ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन स्टूडेंट जेल में थे, उनको शायद 15 अक्टूबर को उनकी रिहाई होने वाली, उन पे एलिगेशंस थे रेशल हेट्रेड फैलाने के, जिनको हटा लिया गया है। स्टूडेंट का नाम विशाल जूड है। आपको इसको इन्फॉर्मेशन है ऑस्ट्रेलिया से इस मामले में? देखिए, हाँ, इसके पहले भी आई थिंक इस पर सवाल आ चुका है। हमारी जो जानकारी है कि आज, मतलब आज 2 तारीख को, हाँ, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में आज एक सुनवाई हुई और वहाँ पे जजमेंट पास हो गया है उनके बारे में। और इसके हम इसके असरटेन कर रहे हैं इसका डिटेल्स क्या है, और वी आर इन टच विद हमारे, जैसे आप जानते हैं, हमारे हाई कमीशन और कॉन्सुलेट इस पर काफ़ी देर से नज़र रखे हुए हैं और हमारे कॉन्सुलर एक्सेस भी हमें मिला था। तो अभी जजमेंट के चलते अब क्या उनके साथ और फर्दर क्या डिटेल्स हैं, हम वो ट्राई कर रहे हैं। आज ही हुआ है, कुछ देर पहले, पर मुझे ये बाकी डिटेल्स के बारे में मुझे नहीं मालूम। आप जो कह रहे हैं डेट और ये जजमेंट है, इसमें प्राइवेसी इश्यूज भी हैं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ये खबर हमारे पास यही है कि आज जजमेंट पास हो गया है ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में। प्लीज। This is Gautam Lahiri. There are some reports that air bubble would be start very soon, perhaps in this week. Do you have, with the neighboring countries, air bubble flight? So do you have any information on that, whether this air bubble is going to resume within this week with the neighboring countries? You mean generally all neighboring countries? Bangladesh, neighboring. Okay, Bangladesh. Okay. Look, on the air bubble, as you know, the air bubbles have been operational, but then because of second wave, there was a pause in some of with the neighboring countries. Specific with Bangladesh, I think discussions are underway. I don't have a date yet. I think both sides are interested in resuming it as soon as possible. But I think talks are on. As of right now, I don't have I know I've seen some media reports, but we don't have exact date on which it can start. I think proposals are being discussed on that.
With the other countries, I think it's already on. With Sri Lanka, I think there are flights on. With Nepal, it has been on and off and on. So I think that if your question was about Bangladesh, yes, talks are on. We don't have a date. Sorry, yeah. Hi, sir. Suchitra from News 18 Tamil. And Bangladesh Information Minister to visit India, I think in the upcoming week, I think. So what is the agenda for the meeting? He's likely to meet Jaishankar as well as Anurag Thakur. So what is the agenda for that meeting? I mean, sorry, you've told me a lot of information. I can't confirm any of those. No, yes, I understand there is an event on which there is a proposal that we may have a visit, but I don't have a confirmation yet that I can share with you. There is an event in connection with the Bangabandhu centenary celebrations as well as with the 50th anniversary. I think he's coming in connection with that. But I think let the Bangladeshi side perhaps announce that. But in terms of meetings, I won't be able to confirm. As you know, as I just started my conversation saying both EM is traveling, he may be meeting other dignitaries and leaders. We will certainly share with you more information. Okay, I think we managed to cover most of it. Thank you very much for being here today. Look forward to catching up with you again next week.